الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أو كما قال الله تبارك وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواہ البخاری و مسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 70 سے زیادہ مقامات پر اقامت صلاح اور ادائے زکوٰۃ کا ذکر اس طرح ساتھ ساتھ کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ان دونوں کا مقام و مرتبہ قریب قریب ایک ہی ہے. اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض علاقوں کے ایسے لوگوں نے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے اور توحید و رسالت کا اقرار کرتے اور نمازیں بھی پڑھتے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف اسی بنیاد پر جہاد کا فیصلہ کیا تھا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ و زکوٰۃ وصول کیجئے تاکہ ان کے قلوب کی تطہیر ہو اور ان کے نفوس کا تزکیہ ہو. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ہم نے ان کو حکم بھیجا نیکیوں کے کرنے کا اور خاص کر نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے اور وہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے. سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں. انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا ایک نیک بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اور جہاں میں کہیں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور میں جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس
शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामस सलाह व ईताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। सबसे पहले इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। दूसरा है नमाज कायम करना और तीसरा है ज़कात अदा करना, चौथा है हज करना और पांचवा है रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। और ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा में अपनी प्यारी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अगर कोई शख्स इन चीज़ों में से, इन 5 चीज़ों में से किसी एक चीज़ का इनकार कर दे तो वह दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, इस्लाम के दायरे से निकलकर कुफ्र की वादी में पहुंच जाता है। अगर इन 5 चीज़ों में से अगर कोई शख्स एक चीज़ का भी इनकार कर दे तो वह दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, कुफ्र की वादी में पहुंच जाता है, कुफ्र के घाट उतर जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स इन 5 अरकानों में से किसी अरकान का इनकार तो नहीं कर रहा है लेकिन अपनी अमली ज़िंदगी से खारिज कर रहा है, अमल नहीं कर रहा है, तो सख्त तरीन गुनहगार होगा। तो इसका एक रुकन क्या है? अल्लाह के नबी ने जो फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, उसमें से एक रुकन है ज़कात। तो 4 चीज़ें ऐसी है किसी भी सूरत हाल में ज़कात देना ही पड़ेगा, किसी भी सूरत हाल में ज़कात वाजिब है। एक चीज़ ये है कि पहला सोने पर ज़कात वाजिब है, चाहे इस्तेमाल का हो या गैर इस्तेमाल का हो, ज़रूरत के लिए हो या गैर ज़रूरत के लिए हो। दूसरा है चांदी पर ज़कात वाजिब है, चाहे इस्तेमाल के लिए हो या गैर इस्तेमाल के लिए हो, ज़रूरत के लिए हो या गैर ज़रूरत के लिए है। तीसरा है पैसों पर ज़कात वाजिब है। चौथा है माल तिजारत, ऐसे कारोबार में पैसा लगा हुआ है जिसमें अशिया ख़रीद कर बेची जा रही है। तो ये 4 चीज़ें ऐसी है किसी भी सूरत हाल में ज़कात देना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये समझ बैठे हुए हैं कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के साथ ज़कात फ़र्ज़ है। गलत, सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है और जिहालत की अलामत है। ज़कात फ़र्ज़ होने का उसूल ये है कि जब कोई बंदी के पास दौलत आ जाती है तो 1 साल के गुज़रने पर ज़कात वाजिब हो जाती है। 1 साल के गुज़रने पर ज़कात वाजिब हो जाती है, चाहे वो साल कभी भी ख़त्म हो, चाहे वो साल रमज़ान में ख़त्म हो, चाहे वो साल शव्वाल में ख़त्म हो। अब रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमान ज़कात क्यों देते हैं? रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमान ज़कात इसीलिए देते हैं कि 1 नेकी का अजर 70 नेकी के बराबर हो जाता है। इसीलिए रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमान ज़कात देते हैं, वरना तो ज़कात एक अलग फ़र्ज़ है। अब ज़कात है क्या? ज़कात किसको कहते हैं? ज़कात किसको कहा जाता है? इट्स टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स सब मालूम है मुसलमानों को, लेकिन ज़कात नहीं मालूम। ज़कात तो अल्लाह के फ़राइज़ में से है। साल आ रहा है, साल जा रहा है, ज़कात फ़र्ज़ हो रही है, माल पर हिसाब व किताब भूल जाते हैं। माल कमाना मालूम लेकिन ज़कात निकालना नहीं मालूम। ज़कात के उसूल क्या है, ज़कात के मकासिद क्या है, कितनी ज़कात देना है, किसको ज़कात देना है, कुछ नहीं मालूम। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का हुक्म सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया को नहीं दिया, बल्कि दुनिया जब से कायम हुई जब से ज़कात का हुक्म है। सिर्फ ज़कात का हुक्म सिर्फ हुजूर की उम्मत के लिए नहीं आया, बल्कि ज़कात का हुक्म तो तमाम अंबिया कराम की उम्मतों के लिए आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए ज़कात का हुक्म था। हज़रत नूह अला नबिय्यिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए ज़कात का हुक्म था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए ज़कात का हुक्म था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए ज़कात का हुक्म था। हज़रत इसहाक़
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए ज़कात का हुक्म था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए ज़कात का हुक्म था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए ज़कात का हुक्म था। तमाम अंबिया कराम की उम्मतों के लिए ज़कात का हुक्म था। कुरान खुद इस बात की गवाही देता है, कुरान खुद इस बात का दावा पेश करता है कि तमाम अंबिया कराम ने ज़कात निकाली और तमाम अंबिया कराम के लिए ज़कात का हुक्म आया है। मैंने शुरू में ही बताया है, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने 70 से ज़्यादा मकामात पर इकामत सला और अदाए ज़कात का जिक्र इस तरह साथ साथ किया, ज़कात और नमाज का जिक्र इस तरह साथ साथ किया, जिससे मालूम होता है कि दीन में इन दोनों का मकाम व मर्तबा करीब एक ही है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसत होने के बाद बहुत सारे मुसलमानों ने ज़कात देने से इनकार किया, तो जनाब सय्यदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनने के बाद ज़कात वसूल करने लगे। तो जो लोग ज़कात देने से इनकार किए, जनाब सय्यदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद का फ़ैसला किया है। जिहाद किन के साथ किया जाता है? जिहाद गैरों के साथ किया जाता है, अपनों के साथ नहीं किया जाता। गैरों पर तलवार उठाई जाती है, अपनों पर तलवार नहीं उठाई जाती। लेकिन जनाब सय्यदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन लोगों के ख़िलाफ़ तलवार उठाई है, उन लोगों के ख़िलाफ़ भी जिहाद किया है जो मुसलमान होकर ज़कात देने से इनकार किए। वरना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को तलवार उठाने की क्या ज़रूरत थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तो नरम मिजाज थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किन किन पर तलवार उठाई जाती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों पर तलवार उठाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो है जो इस्लाम को नहीं मानता, उस पर तलवार उठाई जाती है। दूसरा वो जो मुर्तद हो जाता है, मुसलमान होकर काफिर बन जाता है, मुसलमान होकर कुफ्र के दहाने उतर जाता है, मुसलमान होकर ईसाई बन जाता है या यहूदी बन जाता है, कुफ्र के घाट उतर जाता है। तो दूसरा वो शख्स है जो मुसलमान होकर मुर्तद हो जाता है, तो उस पर तलवार उठाई जाती है। तीसरा जो ज़कात देता है, जो ज़कात अदा नहीं करता, उस पर तलवार उठाई जाती है। उसका मतलब ये होता है कि जो ज़कात नहीं देता वो काफिर से भी बदतर होता है। रियासत तेलंगाना और आंध्रा में लॉकडाउन चल रहा है। जिस तरह गुरबा की मदद और ख़िदमत करना था, हम लोग वैसी खिदमत नहीं कर रहे हैं। कौम के मालदार, कौम के रहबर उस तरह खिदमत अंजाम नहीं दे रहे हैं जिस तरह खिदमत अंजाम देना चाहिए। खिदमत का मौका अच्छा है। मुल्क के जितने भी मालदार हैं, अगर अपनी अपनी ज़कात ईमानदारी से भी निकाल देते तो शायद कोई भूखा नहीं होता, लॉकडाउन में कोई फ़क्र फाका नहीं होता। पूरी दुनिया में गुरबा का क्या हाल है फ़क्र फाके की वजह से। शायद इन लोगों को दौलत के नशे में नज़र न आ रहा होगा। लॉकडाउन में वक्त के मालदार ऐसा पर्दा कर रहे हैं, शायद औरतें भी पर्दा न कर दी हो। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत पैदा करो। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्होंने अपनी सारी दौलत को, जिन्होंने अपने सारे माल को इस्लाम और मुसलमानों के लिए अपनी सारी दौलत को इस्लाम पर खिदमत पर निछावर कर दिया है। न मालूम कितने यतीम भूखे प्यासे सो रहे होंगे, न मालूम कितने यतीम भूखे प्यासे सो रहे होंगे। दौलतें रखकर क्या करोगे? सब यहीं रखकर मरोगे। याद रखना, ना तुम दुनिया में हमेशा रहोगे, ना तुम्हारी दौलतें हमेशा दुनिया में रहेगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दौर खिलाफत में एक मरतबा कहत साली का ज़माना आ गया। ये ख़बर जनाब सय्यदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को जब पहुँची कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत परेशान हुए। उस वक्त जनाब सय्यदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अनाज मौजूद था। जैसे ही हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को ये इत्तला मिली तो फ़ौरन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौरन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर का रुख इख्तियार करते हैं और जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। सलाम कलाम मुसाफ़ा मुआनक़ा होने के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ करते हैं, उस्मान पता चला है कि उस्मान, क्या आपको पता है पूरे मदीने में कहत आ गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उस्मान पता चला है आपके पास अनाज मौजूद है, कितनी रकम में अनाज दोगे? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कीमत पर राज़ी ना हुए, बल्कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारा अनाज गुरबा में तकसीम कर दिया। सारा अनाज गुरबा में और रिश्तेदारों में, गुरबा में और जो फ़क्र फाके के मोहताज थे उन लोगों में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अनाज तकसीम कर दिया। तो जानो, तहकीक करो,
कौन भूखा सो रहा है, कौन रिश्तेदारों में भूखा सो रहा है, कौन मोहल्ले में भूखा सो रहा है। जहाँ कौम के रहबर और रहनुमा खिदमत के सिलसिले में नाकाम है, जहाँ वक्त के मालदार खिदमत के सिलसिले में नाकाम है, वहीं मस्जिद के ज़िम्मेदार भी खिदमत के सिलसिले में नाकाम है। मस्जिदों के सदरों को, मस्जिदों के ज़िम्मेदारों को सिर्फ जुम्मे का चंदा वसूल करना आता है, पैसा बटोरना आता है, लेकिन ऐसे बुरे हालात में मदद करने नहीं आता, गुरबा के हाल पर रहम खाने नहीं आता। कहाँ है वो सदर, कहाँ है वो सेक्रेटरी, कहाँ है वो मोतमद, कहाँ है वो ख़जानची जो मैं बड़ा तू बड़ा, मैं सदर तू सदर कहा करते थे ना। आज यतीमों की, मिस्कीनों की, मजबूरों की आँखों के आंसुओं का सबब तुम लोग हो, आज बेवाओं की आहों का सबब तुम हो। मुझे साफ कहने दो, माल तुम्हारा है, हक गरीबों का भी है, माल तुम्हारा है, हक यतीमों का भी है, माल तुम्हारा है, हक मिस्कीनों का भी है, माल तुम्हारा है, हक मजबूरों का भी है, मालो दौलत तुम्हारी है, हक मदरसों का भी है, मालो दौलत तुम्हारी है, हक मदरसों का भी है। ये ना समझना कि पूरे माल के तन्हा तुम हकदार हो। ये मालो दौलत ना मेरे बाप का है ना तुम्हारे बाप का है, ये मालो दौलत ना मेरी माँ का है ना तुम्हारी माँ का है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मैंने जो दिया मेरा है। खाली फजूल खर्च कितना करते हैं ये लोग। अगर सही जगह खर्च कर देते तो ख़ानदान में कोई जवान लड़की अपनी जवानी दीवारों के सहारे ना गुजारती। कोई यतीम बच्चा अपने गुजरे हुए बाप को देखकर, यतीम बच्चा गुजरे हुए बाप को, किसी मालदार के बच्चे को देखकर अपने बाप को याद ना करता और दिल ही दिल में दिल के चोंचरे ना सोचता, मौला मेरा क्या कसूर था, मेरे दोस्त का बाप जिंदा है मगर मेरा बाप जिंदा नहीं है। तो बच्चे मासूम होते हैं, फतवों के फतवों के शिकवे नहीं जानते। आज हम लोगों को यतीमों की, मिस्कीनों की, मजबूरों की आहें सुना ही नहीं देती। फजूल खर्च से बचो। 80,000 90,000 के मोबाइल की क्या ज़रूरत है? सिर्फ एक घर में 1.5 से 2 लाख के मोबाइल हैं, तो कितने गरीब लोगों की हम लोग मदद कर रहे हैं। आप खुद बताएं, सगी बहन मोहताज है, हम लोग नज़रों से नज़रें मिलाकर नहीं देखते, क्या यही इस्लाम है? तो जहाँ तक हो सके गुरबा के ऊपर रहम करे, गुरबा की कैफियत दरियाफ्त करे। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरे हक़ में दुआ फरमाइए कि अल्लाह पाक मुझे मालदार बना दे। मेरे हक़ में दुआ फरमाइए कि अल्लाह पाक मुझे मालदार बना दे, मुझे तवंगर बना दे। मैं जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह किया करूँगा, मैं ज़कात दिया करूँगा, मैं सदका व खैरात किया करूँगा। मुझे तकलीफ़ होती है और मैं महरूम हो जाता हूँ। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सालबा गरीबी बेहतरी है। अगर मालदारी आ गई तो ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी, रिश्तेदारों के हुकूक़ बढ़ जाएंगे, पड़ोसियों के हुकूक़ बढ़ जाएंगे, दोस्त अहबाब के हुकूक़ बढ़ जाएंगे। गरीबी बेहतरी है, गरीबी बेहतर है। तो हज़रत सालबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हक़ में दुआ फरमाइए कि अल्लाह पाक मुझे मालदार बना दे। मैं दीन की बड़ी बड़ी खिदमत अंजाम दिया करूँगा, मैं दीन इस्लाम की बड़ी बड़ी खिदमत अंजाम दिया करूँगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी, ऐ अल्लाह, ये गरीब शख्स मालदार होना चाहता है, आपकी दीन इस्लाम की मदद करना चाहता है, आपके दीन की बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देना चाहता है, आप अपने फजल करम से माला माल कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल व मंजूर हो गई। हज़रत सालबा के पास सिर्फ एक बकरी थी, हज़रत सालबा के पास सिर्फ एक बकरी थी। उसके बाद बकरियों की इतनी तादाद बढ़ गई जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई इंतहा नहीं। हज़रत सालबा की बकरियां कई मील में घूमने और चरने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्ररा वक्त पर ज़कात वसूल करने वाले जो शख्स थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि सालबा के पास भी जाना। उनकी तो बड़ी तमन्ना थी, बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी आरजू थी दीन की खिदमत करने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हज़रत सालबा की खिदमत में पहुँचे और कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा है कि ज़कात आपसे वसूल करे। तो उस वक्त हज़रत सालबा ने कहा, क्या आपको मेरे अलावा कोई ज़कात देने के लिए नहीं मिला? क्या आपको मेरे अलावा ज़कात लेने के लिए कोई नहीं मिला? तो हम भी अपनी औकात को भूल जाते हैं, अपनी हैसियत को भूल जाते हैं, अल्लाह की दी हुई
نعمتوں کی قدر کرو، اپنی پچھلی زندگی کو نہ بھولو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حیثیت کو مٹا کر رکھ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اوقات کو مٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا، او ثعلبہ آپ نے کیا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری زبان مبارک سے فرمایا، ہائے افسوس ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ، ثعلبہ اپنی پرانی زندگی بھول گیا، ثعلبہ اپنی پچھلی زندگی کو بھول گیا۔ حضرت ثعلبہ کو فوراً یاد آ گیا، میں اللہ کے ایک فرض کو، اللہ کے ایک قرض کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھول گیا ہوں۔ فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ، اس دولت کے نشے میں میں نے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے نشے نے میرے ایمان کو خراب کر دیا ہے، لہٰذا میں غریب ہی اچھا ہوں، میں غریب ہی بہتر ہوں، یہ ساری بکریاں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں، یہ ساری قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لینے سے منع کر دیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ لا تلہکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ چیزیں آدمی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، یہ چیزیں آدمی کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کر دیتی ہے۔ حضرت ثعلبہ تو شروع میں ایک بکری کا بچہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے زکوٰۃ کی رقم کے طور پر، بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں سارا ریوڑ لا کر پیش کیا، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں حضرت ثعلبہ نے لا کر ساری بکریاں پیش کی، خدمت میں لا کر پیش کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا ہے تو میری کیا مجال ہے کہ میں کیا قبول کروں۔ یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا۔ حضرت ثعلبہ کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں ہوا، لیکن کسی صحابی نے زکوٰۃ کی ایک بکری بھی قبول نہیں کی۔ تو بتانے کا مقصد، بتانے کا منشا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے آراستہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر خرچ کر دینا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا رکھا ہے، دوسرا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا رکھا ہے، تیسرا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے خلاصی کا رکھا ہے۔ تو دوسرا عشرہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرے۔ رمضان المبارک کے روزے کتنے اونچے ہیں، رمضان کا روزہ کتنا اونچا عمل ہے جو ایمان والوں پر فرض کیا گیا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ دنیا میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ظاہر کر دیا گیا، زکوٰۃ دینے کا اجر و ثواب ظاہر کر دیا گیا، حج کرنے کا اجر و ثواب ظاہر کر دیا گیا، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر و ثواب ظاہر کر دیا گیا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا اجر و ثواب ظاہر کر دیا گیا، کسی غریب کو کپڑا پہنانے کا اجر و ثواب ظاہر کر دیا گیا۔ لیکن رمضان المبارک کے روزے کے متعلق کہا گیا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ایک ایسا عمل ہے، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں پڑوسیوں کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کرو، رمضان المبارک کے مہینے میں یتیموں کے ساتھ غمخواری کرو، رمضان المبارک کے مہینے میں رشتہ داروں کے ساتھ غمخواری کرو، رمضان المبارک کے مہینے میں یتیموں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کرو۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر شخص پر آتا ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ امیر پر بھی آتا ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ غریب پر بھی آتا ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جھوپڑی میں زندگی گزارنے والے پر بھی آتا ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ محلوں میں زندگی گزارنے والوں پر بھی آتا ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شہری پر بھی آتا ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ دیہاتی پر بھی آتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر شخص پر آتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق غربا پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، بیواؤں پر خرچ کرے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے تو اس کا شکر گزار کرتے ہوئے غربا کا خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔